Neuro works on your nervous system. Linguistic is your language, both internal as well as external. And programming is your beliefs जो इतने टाइम से हमारे अंदर चल रहे हैं कि हम ऐसे हैं. जैसे गर्ल्स को बोला जाता है कि men always overpower. जिम कैरी बोलेगा कि I am unloved, वो कैसे बोलेगा? और उसके क्या एक्सप्रेशंस होंगे? NLP टेक्निक्स, affirmations, gratitude journals, थोड़ी सी meditations techniques and सब कुछ मैंने लिख दिया. क्या आपको रिलेशनशिप में कंफ्यूजन है या फिर फैमिली में काफी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या करियर में डायरेक्शन नहीं मिल रही या फिर हेल्थ रिलेटेड काफी इश्यूज है? सो डोंट वरी, आज ही जुड़िए टीवीटी ट्रिनिटी से. यहाँ पे हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे ऐसे सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर्स, लाइफ कोचेस, करियर कोचेस और काफी प्रोफेशनल से जो आपकी दिक्कतों का सोल्यूशन निकालेंगे. अगर आपको लव लाइफ में क्लैरिटी चाहिए या फिर करियर में डायरेक्शन चाहिए या फिर अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रखना है, सो आज ही हमसे जुड़िए एंड कॉन्टैक्ट अस ऑन 8448801064. Thank you. Welcome to another episode of TVT. Today we are here with Simran Bedi as a NLP super coach. So let's welcome ma'am. Hi Niharika, thank you so much. Thank you for having me here. I'm really grateful to be a part of this episode and thank you for the warm welcome, the entire team. So I'm into NLP super coaching and I heal the wounds which are never spoken about. My expertise is neurolinguistic programming and how NLP can transform your life and how can it make you better human, understand what you are deserving, help you overcome the toxicity and negativity that you are going through in your life. By the end of this episode, I'll be sharing few methods, I'll be sharing few techniques, and I encourage my viewers to try those techniques because it is going to help you out. So ma'am, my first question is that why did you choose NLP as your career? I've been through a lot of ups and downs in my life and I've learned many modalities. But NLP works on a very deeper level. So जब तक वो layers नहीं remove होंगी, कुछ और काम नहीं करेगा. तो NLP ने मुझे हेल्प किया टू बेसिकली रीवायर माई ब्रेन सिस्टम, उन थॉट्स को जो बहुत टाइम से मेरे अंदर चल रहे थे और मुझे लग रहा था कि शायद ये जो टाइमलाइन, ये जो है, यही सच है, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता. सो एक हमारा बचपन से चाइल्डहुड होता है ना कि बिलीफ सिस्टम बैठ जाता है कि हम ऐसे हैं, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर सकते इससे आगे कुछ. दैट इज वेयर NLP हेल्प्स इन टू शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम hurts to healing. That is the reason, I came into NLP. Okay, so can you explain what is NLP and how does it work? So NLP is basically neurolinguistic programming. So neuro works on your nervous system. Linguistic is your language, both internal as well as external. And programming is your beliefs जो इतने टाइम से हमारे अंदर चल रहे हैं कि हम ऐसे हैं. जैसे गर्ल्स को बोला जाता है कि men always overpower. गर्ल्स जितना भी पढ़ लें, जो भी है, आपको men के आगे थोड़ा सा लो रहना पड़ता है, या women cannot have that high valuable jobs or women can't make it. So somewhere we start analyzing and we keep seeing ourselves कि okay मैं इतना पढ़ लूँ but जो भी है क्या मुझे actually जो मिलना चाहिए वो मिलेगा? Will I get that sort of recognition being a woman? So that is the kind of उस particular thought को हमें हटाना है. पहली चीज वो thought हमारा नहीं था, वो हमारे अंदर fit किया गया था from maybe our parents, maybe our school teachers, maybe we were bullied at our young age, and maybe somewhere co-workers, colleagues, and कभी-कभी siblings और relatives में भी हो जाता है कि जो बोलते हैं कि अरे तू तो रहने दे, तुझसे नहीं होने वाला, तुम कहाँ कर सकोगे. So that's what happens. Yeah. So, and if we talk about manifestation, so can you explain what is it? Because हम आजकल सुनते हैं कि manifestation ये कर दिया हमने, affirmations होती है काफी. So does it actually work? Oh,
ऑनेस्टली स्पीकिंग व्हेन वी टॉक अबाउट एफर्मेशंस, तो हमें जैसे लगता है आज की डेट में हमारा जो ब्रेन वायर सिस्टम है वो ऐसी जगह पे पहुंच गया है कि हम गूगल करने लगते हैं कि भाई मुझे वेट लॉस करना है, एफर्मेशंस दे दो, मुझे अर्जेंट मनी रिच होना है, मुझे लव मैनिफेस्ट करना है तो मुझे एफर्मेशंस दे दो, और हम उसे पढ़ने लगते हैं क्योंकि उस पर लिखा होता है 21 डेज कर लो, लिख लो, व्हाटएवर इट इज। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग जो सिखाया जाता है मैनिफेस्टेशन पे और वर्सेस जो मैनिफेस्टेशन इन रियलिटी है, वो दोनों आसपास भी नहीं है आज की डेट में। बिकॉज व्हाट हैपेंस इज मैनिफेस्ट, ओके suppose if somebody is going through a broken relationship और उसे अगर मैं बोले कि like you know yes I deserve love, I'm extremely loving, होगा ही नहीं ना, क्योंकि अंदर तो वैसी फीलिंग तो है ही नहीं ना, क्योंकि मुझे पता है अंदर अंदर क्या चल रहा है, अंदर अंदर like you know there is a deep hurt, there is an emotional trauma, there is so much going on because my marriage or my relationship is not going smooth with my partner, तो मैं कैसे वो मैनिफेस्ट करूंगी। तो सबसे पहले मैनिफेस्टेशन का ये जो मिथ है कि आप एफर्मेशंस करो और हो जाएगा, वैसे नहीं होता है। सबसे पहले आपको यू हैव टू आइडेंटिफाई मेरा ट्रॉमा क्या है, व्हाट इज इट दैट आई एम डीलिंग विथ, हाउ एम आई गोइंग टू ओवरकम एंड क्योर दैट पर्टिकुलर थिंग, एंड देन व्हेन यू आइडेंटिफाई दैट यस दिस इज माय कोर इशू, तो जब मैं उस पे काम करूंगी तभी तो आई मैच दैट वाइब्रेशन कि मैं एफर्मेशंस करूं या विजुअलाइजेशन करूं या जर्नलिंग करूं या मैं मैनिफेस्ट कर सकूं। सो वी हैव टू रीच दैट लेवल फर्स्ट। पहले हर्ट को सरफेस पे लेके आओ, उसे अच्छे से फील करो, देखो वो कितना हर्ट है, कितना पुराना हर्ट है, पता नहीं कितने लाइफ टाइम का हर्ट है, क्या वो एंसेस्ट्रल हर्ट है। पहले फर्स्ट यू हैव टू वर्क ऑन दैट एंड देन वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग व्हिच इज यू नो मैनिफेस्टिंग। So throughout your journey आपके साथ कोई ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं जो आप शेयर कर सको अभी, like client stories and everything? Client stories, yes. So real life experiences भी हैं मेरे साथ। तो clients में basically I had somebody, a female, I'm sorry I won't name her, जिसको चाइल्डहुड से ये इशू होता था दैट लाइक यू नो शी टॉक्स अ लॉट, एंड उसे बुली किया जाता था उसके टीचर्स की तरफ से, ये तो कितना बात करती है, मतलब इट्स लाइक यू नो ये तो बहुत ही ज्यादा है। तो उसके अंदर वो बचपन से वो हो गया कि ओके नहीं बोलना चाहिए ज्यादा, एंड देन उनका वो मिथ बन गया कि शी स्टार्टेड लाइक यू नो not able to perform well in terms of her studies and in terms of her career is concerned. उसे पता सब था लेकिन वो बोल नहीं पाती थी क्योंकि उसने वो नेगेटिव माइंडसेट बना लिया था कि I talk a lot, मुझे बात नहीं करनी है इतनी, एंड मुझे मेरी कंडीशनिंग ऐसी हो चुकी है। So I did a couple of sessions with her and today she's done her first TED talk and incredibly she's done pretty well. So मैम अबाउट करियर, क्योंकि आजकल लोगों को काफी इश्यूज होते हैं करियर में भी, so NLP उस चीज को लेकर हेल्प कर सकता है? बिल्कुल, करियर हो या कोई भी एस्पेक्ट हो, पीपल हु थिंक दैट हम लाइक यू नो नहीं परफॉर्म कर सकते, पीपल हु थिंक दैट हम हाई वैल्यू टिकट क्लाइंट्स को नहीं अट्रैक्ट कर सकते, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ योर कोचिंग इज कंसर्न, इन टर्म्स ऑफ पीपल हु आर इन सेल्स, पीपल हु वांट टू बिल्ड देमसेल्फ इन टर्म्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, तो उनके अंदर भी काफी सारे स्ट्रगल्स होते हैं कि बिजनेस आइडिया है, बिजनेस अप्रोच है, फंडिंग भी है, बट आगे क्या अप्रोच क्या होना चाहिए, कम से कम वो एक फियर, वो माइंडसेट में एक पीछे पीछे वो चल रहा होता है कि मैं कर पाऊंगा क्या, मेरे से होगा ये तो समथिंग मैं तो नहीं कर पाऊंगा, what if business loss हो गया, what if मुझे second round funding नहीं generate हुई, so like you know what if को हम बदल के लेके आते हैं, वो उस negative belief को हम नीचे करते हैं और उस positive belief को हम ऊपर लाते हैं कि you need to take first step, जब तक आप step नहीं लोगे तो कैसे होगा। So yes, it does help, and like you know if I share my personal experience also, if we would have met probably last year, मेरा जो thought process था, मैं डरती थी। Honestly speaking, I'm not shy. I'm like you know, I'm telling you, I used to have lot of fear. Okay, coaching में मैं जाऊंगी कैसे होगा? तो honestly speaking, when I got into NLP, immediately I did not get into coaching because whatever I learned from my teachers and from my life experiences, first I implemented that in my life
फर्स्ट आई वर्कड ऑन माई लिमिटिंग बिलीव्स. मेरी कहाँ कहाँ पे कमियां थी, मैंने उस पर सबसे पहले काम किया, वो सारे टेक्निक्स यूज किए. एंड टुडे आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई एम सिटिंग हियर एंड टॉकिंग टू द लवली ऑडियंस. एंड my aim is basically to build people with confidence and just pull them through whatever they are going through in life. So अगर मैम हम रिलेशनशिप्स की बात करें तो NLP को हम उसमें इनकॉर्पोरेट कैसे कर सकते हैं? रिलेशनशिप में क्या होता है, जैसे मेरे पास कितने सारे लोग आते हैं रिलेशनशिप में, बिकॉज उनके वो पैटर्न्स बने हुए हैं कि why do I attract negative इमोशनली अनअवेलेबल पार्टनर्स. मैं तो अपनी तरफ से 100% दे रही हूँ या दे रहा हूँ, लेकिन वहां से मुझे नहीं मिल रहा है. तो कहाँ मेरी कमी है? आई एम ओवर गिविंग, आई एम डूइंग लाइक ओवर फॉर माई पार्टनर. उसको मैं कोई कमी नहीं रख रही हूँ, लेकिन माई पार्टनर इज लाइक पुलिंग बैक फ्रॉम मी. व्हाई इज दैट सो? मतलब जितना प्यार मैं दे सकता हूँ या मैं दे सकती हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, शायद ही किसी ने किया होगा, लेकिन मेरा पार्टनर मुझसे खुशी नहीं है, वो तो मुझसे दूर भाग रहा है. क्यों ऐसा? बिकॉज ओवर गिविंग एंड ओवर एक्सपेक्टिंग. दिस इज अगेन, अगर आप इसको डॉट्स कनेक्ट करोगे. ओके, आई विल शेयर अ रियल लाइफ स्टोरी. आई एम अ सिंगल पेरेंट एंड अ प्राउड सिंगल पेरेंट. जब मेरा सेपरेशन हुआ, व्हेन आई गॉट आउट ऑफ माई रिलेशनशिप, इट वॉज क्वाइट टॉक्सिक. मुझे पहले डर लगता था कि अगर मैं निकल गई इस रिलेशनशिप से बाहर तो मेरा क्या? मैं कैसे मैनेज करूंगी? आई वॉज वर्किंग, आई वॉज स्टेबल, एक स्टेबिलिटी थी करियर में, सब कुछ था, लेकिन वो फियर बहुत अंदर डेप्थ तक था कि नहीं कर पाऊंगी. बिकॉज चाइल्डहुड से कंडीशनिंग हो रखी थी ना कि फैमिलीज में डिवोर्स नहीं होता है, एक औरत को झुक के रहना पड़ता है, एक औरत ही डिसाइड करती है कि उसका घर कैसे उसको बचाना है. तो कहीं लगने लग गया कि अगर मैं ओवर गिवर हूँ, ओवर कर रही हूँ, शायद यहाँ पे भी मेरी ही गलती होगी कि मेरा पार्टनर मुझे चीट कर जाए या मुझे झूठ बोल रहा है या मेरी मैरिज नहीं वर्कआउट कर रही है. सो वी कम बैक टू रिलेशनशिप्स. इसमें ये होता है कि लोग सोचते हैं कि ओवर करने से हो जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पेरेंटल या हमारे एंसेस्ट्रल साइड से ये चलता आ रहा है कि बॉस, अ वुमेन इज अ गिवर. क्योंकि ओके, आई टेल यू वेरी वेरी डीप मीनिंग टुवर्ड्स दिस. मुझे बचपन में, सो वी आर 4 ब्रदर सिस्टर्स, तो I've seen lot of struggles in my childhood. बहुत कुछ लाइफ में देखा, and my parents were also struggling and all that. इतने रिच फैमिली से नहीं थे हम. तो जहाँ पे मुझे मॉम की जरूरत थी, तो वो इमोशनली मुझे वो मिला नहीं. जहाँ पे मुझे एक पेरेंटल की, एक डैड की, मॉम की या सिबलिंग्स की जरूरत थी, वहाँ पे मुझे वो नेग्लिजेंस फील हुआ. वहाँ पे मुझे लगा कि ये तो मेरे लिए इमोशनली अवेलेबल है ही नहीं. बहुत सारी चीजें होती थी, मन करता था शेयर करने का, लेकिन नहीं शेयर कर पाती थी क्योंकि डरते थे. और ऑर्थोडॉक्स फैमिली होती थी तो ये लगता था कि अरे मार पड़ेगी. तो मैंने वो लव बाहर ढूंढना स्टार्ट किया कि अगर मुझे कोई प्यार से बात कर ले, चाहे वो फ्रेंड्स हो या बॉयफ्रेंड हो या कलीग्स हो या कुछ भी हो, कि मुझे लगता था कि नहीं, ओके, दिस पर्सन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मी, दिस पर्सन इज लविंग मी या केयरिंग टुवर्ड्स मी, मैं तो इसे इतना प्यार दूंगी, इसके लिए तो ओवर करूंगी, कहीं ये भी मुझे इमोशनली मेरे लिए अवेलेबल ना हो जाए कि जो मेरे साथ चाइल्डहुड में हुआ. ये होता है जब हम ओवर करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे चाइल्डहुड में वो चीज हमारे साथ बीती हुई होती है कि हमें नहीं वो मिला. नहीं मिला तो हम बाहर वो चीज ढूंढना स्टार्ट करते हैं. दिस इज व्हाट I teach in NLP. एंड जब हम ये ब्रेन के साथ हम जब खेलते हैं ना, तब हमें सारी चीजें ऑन द सर्फेस आती है कि yes, I was 10 year old और मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था. That's where your healing actually starts happening. So NLP works on a very very deeper levels. बहुत सारी layers होते हैं. उन layers को remove करके अपने आप को एकदम लेके आना और पॉजिटिव बनना, इट्स अ डीप वर्क. सो मैम, हम अपनी सेल्फ वर्थ को कैसे एक्नॉलेज कर सकते हैं? बिकॉज व्हाट हैपेंस कि वी ऑलवेज लुक फॉर वैलिडेशन, हमें दूसरों से वैलिडेशन चाहिए होती है, तो उस चीज को हम कैसे रोक सकते हैं? ऑनेस्टली स्पीकिंग, आज की डेट में अगर आप देखो
वैलिडेशन सबको चाहिए होती है। कहीं ना कहीं हमको लगता है कि वी आर नॉट गुड इनफ, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग लगने में कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर लगता है हमें ऐसा, बिकॉज I'll talk very very practical कि see we all are learners and everybody is our teachers, और अगर हमें ऐसा लगता है कि मैं वर्दी नहीं हूँ, पहले तो उस थॉट से कनेक्ट करो। वो थॉट आया कहाँ से? इज इट योर थॉट? इज इट does that thought belongs to maybe your bosses or your partners or anybody who has like filled in मैं good enough क्यों नहीं हूँ? ऐसा क्या है मतलब like उसमें या उसमें वो गुड इनफ है लेकिन मैं गुड इनफ नहीं हूँ। मैं इतना पढ़ी लिखी हूँ, मैंने I've graduated in so many things and look at my skills, मैं कैसे गुड इनफ नहीं हो सकती? तो सबसे पहले तो वो थॉट काट के फेंको जो आपको ये कह रहा है कि नहीं मुझे तो भाई सबसे वैलिडेशन चाहिए। एंड ऑनेस्टली ये धीरे 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 प्रैक्टिस से ही बिल्ड होता है। बिकॉज पहले मैं अगर सोचूंगी कि बॉस मैं गुड इनफ नहीं हूँ, बट लेकिन मैं गुड इनफ क्यों नहीं हूँ, ऐसा कौन कह रहा है, क्या है ये मेरे थॉट्स है? नहीं, वो मेरे थॉट्स नहीं है। तो यू नीड टू NLP में हम क्या करते हैं वी डू सर्टेन मेडिटेशंस जिसमें हम उस पर्टिकुलर पर्सन को अपनी एनर्जी अपने ऑरिक फील्ड में इनवाइट करते हैं और उनके साथ हम फॉरगिवनेस करते हैं कि थैंक यू सो मच फॉर दिस एक्सपीरियंस यू हैव गिवन मी, you've done your work and I am detaching myself from this thought process because it's yours, it doesn't serve me any better. Forgiveness करो, उनके साथ cord cut करो, उनको release करो, and then you start working on that. Okay, so आप like NLP से related कोई tips and techniques दे सकते हैं, like कोई भी aspect में अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो रही हो तो उसमें वो कैसे work कर सकते हैं NLP के थ्रू? चलो एक काम करते हैं, on the show itself एक टेक्निक करते हैं। Sure. Okay. So दो इसमें 10-15 minutes लगेंगे, but I'll cut it. I'll try and make it very very shorter. Yeah. So we call it a thumb technique. Okay. अब थंब टेक्निक में क्या होता है, आप एक थॉट प्रोसेस लेके आओ, कोई एक डायलॉग या कुछ एक आपके साथ लाइफ में रिसेंटली या पास्ट में हुआ हो जिसे आप भूल नहीं पा रहे हो, या I'm ugly, I'm very very unloving, nobody loves me. Okay, तो सबसे पहले you need to close your eyes, take few deep breaths, sit straight and put your thumb आगे like this. And now this is what we call as thumb technique. Now अब imagine करो उस डायलॉग को जो आपको तकलीफ दे रहा है, उस डायलॉग को सबसे पहले कि I'm unloved, I always end up attracting wrong partners. Take that particular audio out here. अगर आप नहीं imagine कर सकते तो सोचो यहाँ पे एक speaker रखा हुआ है, उस स्पीकर में वो चल रहा है। देन उसके बाद उस थॉट को अपनी एल्बो पे लेके आओ, एल्बो से देन आप अपने थंब पे लेके आओ। अब थंब पे आप लेके आए हो तो आप इमेजिन करो आपके फेवरेट कॉमेडियन को। अगर वो आपका फेवरेट कॉमेडियन, मेरा फेवरेट ऑल टाइम कॉमेडियन इज जिम कैरी, तो अगर जिम कैरी बोलेगा कि आई एम अनलव्ड, वो कैसे बोलेगा और उसके क्या एक्सप्रेशंस होंगे, राइट? एंड देन you do is this, and then once you do is, now you imagine your favorite cartoon, Tom and Jerry, Mickey Mouse or anybody saying that dialogue. तो वो जो डायलॉग क्या वो आपको इफेक्ट करेगी? अब वो वाली साउंड आपको हंसी आएगी वो सुन के, राइट? तो नाउ इमेजिन दैट डोनाल्ड डक इज सेइंग दैट आई एम अनवर्दी, आई एम नॉट लव्ड, मेरे पास तो पैसे आ ही नहीं सकते टाइप्स। फाइन हुआ। नाउ अपना थंब सीधा करो, नाउ रेज योर अदर हैंड। अब इस थंब पे जो आपके मेंटोर हैं या जिनको आप बहुत मानते हो, आपके गुरु या मे बी योर पेरेंट और एनीबडी हु हैज ऑलवेज अपलिफ्टेड यू, उनको इमेजिन करो और उस नेगेटिव डायलॉग को अब हम पॉजिटिव रिफ्रेम करेंगे दैट आई एम लविंग and universe is always there to support me in all ways, every ways, and I'm authentic. Fine. Now you bring that frame to your elbow and then to your shoulder and vapas in your brain. So this is how you program it and repeat that 21 times, and then honestly आपने लेफ्ट साइड में अपने इस हाथ में जो भी बोला था वो आपको याद भी नहीं रहेगा। This is the power of NLP. So मैम, इन केस अगर रिलेशनशिप में हमारा पार्टनर हमें छोड़ के चला गया है, सो काफी मतलब नेगेटिव इमोशंस आते हैं दिमाग में, सो उन चीजों को हम रिफ्रेम कैसे कर सकते हैं? See, many times ऐसा होता है कि जब
हमें बोलते हैं ना वो प्यार में धोखा मिला, तो हमें लगता है कि हम अपने आप को जज करना स्टार्ट करते हैं, शायद आई वॉज नॉट गुड इनफ, शायद मेरे में ही कमी होगी, मे बी द पर्सन हैज गॉन अहेड विद अदर पर्सन, सो शायद ही और शी मे बी बेटर देन मी और समथिंग लाइक दैट। रादर देन हम ये भूल जाते हैं अपने आप को वैल्यू करना, दैट I was trying to shrink into that toxicity just to fit into that scenario कि मुझे उस particular partner के साथ रहना था। Ask yourself, अगर मैं वैसी toxicity में रहती तो क्या वो मेरे soul के लिए सही था? You'll get the answer, no, it is not. So उस negative reframe को आपको shift करने के positive में लाना है, जिसमें आपने बोलना है कि I'm deserving and somebody who absolutely aligns with the kind of person I am, brings in positivity in my life, and is a very good soul for me, is about to enter my life, and I deserve much better. I deserve honesty. So that is where we have to. Unfortunately क्या होता है आजकल, अगर मैं देखती हूँ तो लोग जिन लोगों के पीछे भागते हैं वो बहुत टॉक्सिक होते हैं। तो दैट इज वेयर लाइक हम NLP में सिखाते हैं कि जनरली अगर आप देखो, लोग जो नार्सिसिस्ट होते हैं, नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी ऐसी होती है जो गलती खुद करेंगे और हर वो चीज़ करेंगे जो आपको हर्ट करे, लेकिन आपको ऐसा फील कराएंगे क्योंकि तुम ऐसे हो इसलिए तो मैंने चीट किया, यू आर डिफिकल्ट टू टॉक टू इसलिए तो मैंने ऐसा किया, बिकॉज दिस इज द ट्रिक ऑफ नार्सिसिस्ट। अगर कोई नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप में है, ना वो उसके साथ रह सकता है ना वो उसको छोड़ सकता है। नार्सिसिस्ट के एक ऐसे पैटर्न्स होते हैं, बिकॉज दे आर वेरी गुड इन लाइंग, दे आर वेरी 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 गुड इन टर्म्स ऑफ आपको आपकी अच्छाई पे डाउट करना सिखा देंगे वो, कि आप अगर अच्छे हो, आप अगर एक गुड ह्यूमन बीइंग हो, तो उसमें भी आपको लगने लगेगा ओ माय गॉड क्या मैं ऐसी हूँ। सो be very careful guys. I would suggest, like, the moment you come to know somebody who's narcissist and who's making you doubt your own belief system, walk out. Not worth it. But ma'am, usually what happens कि like everything is going good, but एक toxic positivity आ जाती है कि you can't do because this. because that is where the reframing works ना। वहीं पे तो हमें लगता है कि क्योंकि हम comfort zone में आ जाते हैं कि हाँ भाई यही है, इससे ज्यादा तुम भैया बढ़िया प्यार मुझे कोई और कर नहीं सकता। तो क्योंकि नार्सिसिस्ट आर गुड एट इट, वो आपको बहुत ज्यादा प्यार और बहुत ज्यादा लाइक अपने प्रति ऐसे ढाल लेंगे अपने प्यार को या अपनी टॉक्सिसिटी को, आपको लगेगा कि बॉस इसने मुझे छोड़ दिया, मैं तो बर्बाद। बट ऑनेस्टली ऐसा कुछ होता नहीं है, ये उनके ट्रिक्स होते हैं। ट्रस्ट मी, आई हैव बीन थ्रू वन। मुझे 11 साल लगे उस चीज से निकलने में। मुझे अपने स्पिरिचुअलिटी पे शक हो गया था, क्या स्पिरिचुअल होना पाप है? तो ऐसा कुछ होता नहीं है। सो मैम, अपने आप को रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो? वो पीक कोविड टाइम था व्हेन माय मैरिज ब्रोक एंड विथ अ स्मॉल किड। मुझे पता नहीं था व्हाट एम आई गोइंग टू डू, आगे क्या मेरे साथ क्या होने वाला है। बैंक में कुछ पैसे थे, कुछ एक इन्वेस्टमेंट्स थे, ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई भी नहीं था साथ में, बट मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट था कि अगर मैं इस नेगेटिविटी में, इस टॉक्सिसिटी में और कुछ टाइम रह गई, आई एम गोइंग टू डाई। आई टुक दैट स्टेप। एक वो बोलते हैं ना कि जब व्हेन इट इज टाइम इट इज टाइम, आपको दिल से आवाज आएगी कि बस अब बहुत हो गया, अब निकलना है यहाँ से। टेक दैट स्टेप। Honestly, if you take that hard step, universe or God will send you helps from all directions that will pull you out. People in my life appeared like angels who actually pulled me out. And honestly, जो भी है, I'm really grateful to that situation, people, environment and things like that. अगर वो सब नहीं होता तो मैं यहाँ कहाँ से आती, मैं स्पिरिचुअलिटी के टुवर्ड्स इंक्लाइन कैसे होती, आज NLP कैसे सीखती, आज कैसे दूसरों को हील करती एंड दूसरों को एहसास दिलाती भाई ये टॉक्सिसिटी है, ये प्यार नहीं है, निकलो इसमें से बाहर। सो लुक, देयर इज नो हार्म ओपनली शेयरिंग थिंग्स as long as you're not hurting anybody's emotions. So
sometimes we shrink in. कभी भी अपने इमोशंस को अंदर मत रखो, बिकॉज अगर वो अंदर आप इमोशंस रखोगे तो इन अ साइकोसोमैटिक वे इट विल अपीयर टू योर बॉडी एज अ डिजीज, एज कुछ ना कुछ लाइक रोग या कोई चीज. किसी को माइग्रेन रहती है, लाख कोशिश करते हैं जाती नहीं. किसी को स्टमक इश्यूज हैं, नहीं जाते. डाइजेस्टिव सिस्टम हिल गया है क्योंकि अंदर इतना कुछ माल रखा हुआ है ना. निकालो उसको बाहर. आई वुड से crying is very important. Crying heals you because that is one way a human gets it all that toxicity out. So ma'am, you wrote this book called Soul on Fire. So can you tell me like what was the inspiration behind it? So Soul on Fire is basically based on my real life story. How I've been through challenges and what all I did to overcome them. Soul on Fire में मैंने पूरी की पूरी NLP techniques, affirmations, gratitude journals, थोड़ी सी meditations, techniques and सब कुछ मैंने लिख दिया. मेरे challenges कहाँ थे? So from hurt to healing, how did that happen? All that thing I've covered. This book is actually dedicated to my daughter who will turn 15 this month. She was just 10-year-old when she encouraged me, enough. Ab, you need to live for yourself. Honestly speaking, she behaves like my mom. And this book is actually dedicated to everyone who is undergoing toxic relationships, undergoing bad marriages or bad relationships, but बाहर नहीं आ पा रहे वो, जो कहीं ना कहीं अपने आप को भूल चुके हैं कि उनकी वर्थ क्या है. So it is just like an initiative that I have taken, that look, understand, एक ही लाइफ है, बहुत सारी चीजें हैं लाइफ में करने के लिए. बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है ना, हम एक चीज को लाइफ में लेके पकड़ के बैठ जाते हैं और हमें लगता है बस अब इसी के इर्द गिर्द हमारी लाइफ है. नो, दैट्स नॉट द फैक्ट. सो दिस वाज बेसिकली अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज टू specifically women, single mothers, and I know a lot of my friends and colleagues who are going through a toxic relationships, but मेरा क्या होगा, यहाँ से मैं कहाँ जाऊंगी के चक्कर में छोड़ नहीं पा रहे हैं और निकल नहीं पा रहे हैं. So I would really encourage people to read this and it'll definitely bring in very good results. Yeah, I'm definitely gonna read it. Thank you viewers for watching this podcast. If you want to connect with me one-on-one, my details are shared in the screen below. You can reach out to me. I'll be more than happy to help you. Thank you so much. Thank you for having me.